लंबी सी जर्नी कैची धाम। नीम करौली बाबा किसने सुना है? नैनीताल में, बस वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग आ गए महाराष्ट्र चेक पोस्ट में। ये आगे मेरे सामने देखो महाराष्ट्र का चेक पोस्ट है। ये क्रॉस कर लिए, अभी नहीं किए, अभी करेंगे। टर्न मारने आती नहीं है, आ जाते हैं गाड़ी लेकर के। क्या बेवकूफ़ लोग हैं ना। इंडिया में सबसे लंबी कार मेरे पास है, मतलब और भी लोगों के पास है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक बार में निकालता हूँ, मेरे को रिवर्स मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। होंडा अकॉर्ड, आप लोगों ने देखी होगी वीडियो में। चलो अब मिलता हूँ मैं आगे। वापी पहुँचे हैं अभी हम लोग। तो भाइयों मैं रुका था, ये अपना सामने देखो वापी टोल प्लाजा है, यहाँ पे थोड़ा मिला कि पेट पूजा कर लूँ। यहाँ पे थोड़ा मेरे को वो मिला पैटीज़, ये देखो इसमें हाईवे नेस्ट में। तो फिर मिला कि पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर चलता हूँ आगे। तो अभी थोड़ी पेट पूजा हो गई, 3 पैटीज़ खाया भाई, मज़ा आ गया। लेकिन यहाँ पे कलर का काम चल रहा है, डिवाइडर को कलर कर रहे हैं। ये देखो धो के मस्त चकाचक चमका के। तो टाइम आ गया है फ्यूल भरवाने का, 150 किलोमीटर ही का ही रेंज बचा हुआ है। तो अब निकलते हैं हम लोग। तो अभी खाना खाने के लिए ब्रेक लिया था, खाना खा लिया। चलो तो खाना खा के हो गया। अभी मैं कुछ हूँ 300 किलोमीटर आया हूँ, 396 का रेंज है। और ऑडो 1300 हो गया है, मतलब 1000 में सर्विस कराया था, 1000 में से कुछ घर से निकला था। हाँ 300 किलोमीटर आया हूँ अभी। ये देखो 199, 100 किलोमीटर पे फ्यूल कराया था। ये देखो दिख रहा है ये। चलो अभी वडोदरा है 100 किलोमीटर। ट्रकों की लाइन देखो, मज़ा आ रहा है यार, लेकिन कुछ भी बोलो। कार चलाने की आदत हो गई है ना, बाइक थोड़ी हाथ में बैठ जाएगी तो फिर रपा रप निकलेंगे अपन। अभी तक अपन यूज्ड टू हुए नहीं है इसके, लेकिन इतना लंबा राइड मार रहा हो तो हो ही जाएंगे। चलो तो फिर मिलता हूँ आगे, अपडेट देते रहूँगा जैसे जैसे होगा। भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो मुझे, ताकि मैं एक दिन थाईलैंड की राइड मारूँ यहाँ से, मुंबई से बैंकॉक 5000 किलोमीटर है ना। कौन सा टोल है ये? नाम ही नहीं लिखा है साले। LNT का है, LNT का टैग तो है वहाँ पे।
यहाँ से वडोदरा ज़्यादा नहीं, 25 होगा। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. तो कैसे हो भाई लोग? उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही होगी ढंग से। अगर नहीं आ रही है तो फिर मैं क्या करता हूँ ना, टीवी की आवाज़ कम कर देता हूँ, फ़ैन को बंद कर दूँ क्या आप लोगों के लिए। बहुत कुछ करना पड़ता है यार, सच बोल रहा हूँ। मालूम है रिकॉर्डिंग करना, अकेले सोलो राइड करना हलवा नहीं है। मैं इसको हलवा समझता था, लेकिन ये करो वो करो दुनिया करो दारी करो यार, इतनी मगजमारी तो मैंने कभी नहीं की थी, कसम से बता रहा हूँ। लेकिन अब आप लोगों के लिए करना पड़ेगा और कर रहा हूँ। देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अब अपनी बड़ाई छोड़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ कमरा कैसा मिला। 800 रुपये में मिला है। ये देखो, ये है। ये मैंने खाना भी ऑर्डर कर दिया क्योंकि बोल रहे थे भाई 5 मिनट में किचन बंद हो रहा है। अभी रात के मेरे हिसाब से 10:30 के करीब का कुछ टाइम हो रहा है। 10:30 भी नहीं, हाँ 10:30 तो हो ही रहा होगा यार। उसको मैं दिखाता हूँ। नहीं 10 बज रहा है, 10 बज रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना अंधेरा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि बाप रे वहाँ पर रात के 3 बज गए, है ना। ये बाहर का नज़ारा सबरे दिखाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से देखेगा। तो ये है होटल नटराज। ये अच्छा होटल है, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन मैंने एकदम चीप कमरा लिया है क्योंकि सिर्फ रात ही तो गुजारना है यार मुझे। बाकी बाहर भूतिया होटल है ना, भूतिया होटल है। तो ये है, ये सारी कहानी है। राइड के बारे में बात करूँ तो मैं अभी कहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं हिम्मत नगर पहुँचा हूँ। हिम्मत नगर में हूँ मैं अभी। यहाँ से राजस्थान ज़्यादा दूर नहीं है, पास में। ये 20-30 किलोमीटर का कुछ फ़र्क होगा, 20-30 भी नहीं होगा मेरे को लगता है। तो यही है। और बात करूँ कि भाई 500 के करीब, 500 किलोमीटर ही चला हूँ मैं। घर से निकला था तब 11 बज रहे थे, 11 बजे, हाँ 11 के करीब ही टाइम हो रहा था। नहीं शायद 10 बज रहे थे यार, अरे जो भी बज रहे थे 10-11, चलो 10 पकड़ लेते। 10 बज रहा था, 10 बजे निकला मैं। और नहीं यार, हाँ 10:30 करीब कुछ हो रहा था। शुभ ना भी
जो भी हो रहा था, ठीक है। तो मैं पहुंचा सूरत के पास, नहीं, भरूच था 30 किलोमीटर, तब 3 बज रहे थे। वहाँ पे मैंने खाना खाया और वहाँ से फिर जब मैं निकला ना तो सीधा अहमदाबाद पहुँचा। रास्ते में रुका थोड़ा चाय वाय पीने, ये वो करने। पब्लिक बहुत, मतलब ये क्या है, ये आपने ये क्या लगा के रखा हुआ है, आप क्या करते हो, ऐसा। और गुजराती भाषा में, मतलब हिंदी टूटी फूटी बोल करके। तो इसलिए मैं वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, एक और हादसा हुआ मेरे साथ में, ठीक है, वो तो आप लोग वीडियो में देखेंगे। एक गाड़ी वाला मतलब बहुत ही अजीब तरीके से चला रहा था वो, और एक जन है ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो कैसे कैसे ट्रिक होता है, आप लोग सब लोग जान लो। ये चीज़ जानना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लोग कैसे। एक सेकंड रुको, मैं पहले टीवी का आवाज़ है ना कम कर देता हूँ। म्यूट कर दिया मैंने, ठीक है। तो मेरे साथ में क्या हादसा हुआ मालूम है, मैं चीज़ों को पकड़ लेता हूँ, बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ, तरीके से पकड़ लेता हूँ। ये आप लोग अगर कहीं भी सोलो राइड करते हो ना, तो आप लोग भी ना ध्यान रखना, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। देखो मैं एक पेट्रोल पम्प के जस्ट पहले वीडियो डालूंगा ना, तो देखना मैंने फ्यूल भरवाया वहाँ पे। उससे जस्ट पहले रुका था, कॉल आया था, तो बात कर रहा था मैं बाइक साइड में लगा के आराम से खड़े होकर के, और बात करके सब करके फिर मैं वहाँ से जैसे निकला ना, मैं कैमरा ऑन किया था, लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गया, कसम से बता रहा हूँ। रिकॉर्ड का बटन भी साथ दबाया था मैं, लेकिन रिकॉर्ड हुआ नहीं। वो हाईवे था, हाईवे रहता है, हाईवे के बाजू में सर्विस रोड रहता है। सर्विस रोड में मैं खड़ा हुआ था। मैं जैसे ही वहाँ से यूटर्न मार के जाने लगा ना, तो दो लोग, एक एक्टिवा खड़ी थी हाईवे पे, और 2 लोग खड़े थे और मेरे को ऐसा हाथ दिखाए। तो मैं रुक गया, बोला कि भाई क्या बात है, देख लेता हूँ। तो मेरे को एक जन आया पास में और बोला कि भाई यहाँ पे आगे ना एक्सीडेंट हो गया है, तो आप है ना जरा अपना मोबाइल दो ना, मेरे को जरा एक फ़ोन करना है, सर करके बोला मेरे को। तो मैंने जेब से मोबाइल निकाला, वो लोग 2 लोग थे और मैंने उन लोग को दे दिया। मैंने बोला ले, एकदम मतलब एक मेरी एक होता है ना बॉडी लैंग्वेज कि बेफिक्र है आदमी, बेफिक्र तो है लेकिन खतरनाक भी है, समझे। ये एक बॉडी लैंग्वेज होता है, एक तरीका होता है। आप लोग जब मेरे को देखोगे, मेरी वीडियोस देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या और कैसे एक्सप्रेशन देना है, क्योंकि मैं फिल्म लाइन में था 15 साल से, मेरे को बराबर मालूम है। तो मैंने एकदम ऐसे दे दिया उसके हाथ में मोबाइल। अब वो क्या, वो पहले कॉल लगाया, सर 1 से या 2 से, मैंने बोला किसी से भी लगा ले। उसने एक नंबर से कॉल लगाया और मैं उसका रिकॉर्डिंग सुनूंगा, और उसके बाद है ना वो उसको भी वीडियो में ऐड कर दूंगा। अगर कुछ आड़ा टेढ़ा रहा तो उसने अगर बात किया होगा तो। लेकिन मेरा जो दिमाग कह रहा है ना, वो ये कह रहा है, वो बात करते करते ना तुरंत हाईवे की उस तरफ चला गया, और जो दूसरा बंदा था वो मेरे पास खड़ा था और वो मेरे से बात कर रहा था, ये क्या है, मैंने बोला कैमरा है। और आप राइड करते हो, मैंने बोला हाँ राइड करता हूँ। एकदम छपरी टाइप का था। तो आप अकेले हो या आप लोग तो ग्रुप में रहते हो ना, मैंने बोला हाँ 4 लोग ये पीछे ये बस आ ही रहे और 3 लोग आगे गए। ऐसे करके मैंने उसको ऐसे ही छप्पड़ राख दे दिया। तो थोड़ी देर के बाद में वो बंदा आया और बोला लीजिए सर हो गया। मेरे सामने कुछ वो मतलब गुजराती में बोल रहा था, लेकिन समझ में आ रहा था कि हाँ तुम लोग दवाखाना जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो एक बात बताओ, जब दवाखाना जाओ आ रहा हूँ इतना ही बोलना था, तो वहाँ तक जा करके तूने क्या बात की? नंबर 1, ठीक है। अब इन लोगों का सिग्नल देखो कैसा होता है। बंदा जो रहता है ना फर्स्ट, वो क्या करता है, वो मोबाइल लेकर के अपनी बाइक स्कूटी के पास चले जाता है। और सेकंड बंदा अगर भाग के आया ना, मतलब जो सेकंड बंदा जो आपसे बात कर रहा है, अगर वो भाग करके आ गया ना, समझ गए, मतलब वो आ गया ना उसके पास, तो मतलब ग्रीन सिग्नल है उनके लिए, वो लोग निकल सकते हैं। वो जो सेकंड बंदा रहता है ना, वो टटोलता है कि हम लोग मतलब जिसका मोबाइल लिए वो कौन है, क्या है, कैसा है, कि इसका मोबाइल लेके भागेंगे तो पकड़े ना जाए, समझ गए ना, ये सब चीज़ें होती है। तो मैंने जैसे उसको राग बदल दिए ना, तो वो एक 10 मिनट में घूम घाम करके आ गया, समझे। और बोला लीजिए सर, थैंक यू सर, ये वो बोला। मैंने बोला कोई बात नहीं, ला दे। मोबाइल जेब में रखा और मैं चला गया। मैंने ज़रा भी ऐसा नहीं दिखाया कि मेरे को मतलब कोई परवाह है या कुछ है या ऐसा वैसा कुछ होता है ना, ज़रा सा भी नहीं दिखाया, ठीक है। तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुनूंगा और डाल दूंगा। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि मैं विदाउट ग्लव्स, विदाउट राइडिंग गियर, कुछ नहीं, जैकेट फैकेट कुछ नहीं, ऐसे ही सिंगल टी शर्ट में हूँ, देख रहे हो ना, ऐसे सिंगल टी शर्ट में उठा, बाइक लिया और निकल लिया। आपने देखा होगा मेरे को। तो मैंने राइडिंग गियर क्यों नहीं पहना? राइडिंग गियर इसके लिए नहीं पहना कि कम से कम 600 सीसी मेरे लिए बाइक होनी चाहिए राइडिंग गियर पहनने के लिए, ठीक है। 300 नॉर्मल है,
इतना कुछ वो नहीं है। आप अपने घर से अगर डेली जहाँ मैं रहता हूँ मीरा रोड, और वहाँ से अगर मेरा ऑफिस है अंधेरी, तो मैं डेली पहले बाइक से अप डाउन करता था। तो मेरे लिए इतना दूर आना भी इतनी बड़ी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल तरीके से आओ और जाओ, मतलब क्या है ऐसा। ज़्यादा स्पीड में अगर हम लोग चलते हैं, जैसे कि 150 के करीब चलते, 130 140 चलते, तो वो टाइम पे खतरा बना रहता है। खतरा क्यों बना रहता है मैं आप लोग को वो भी बताता हूँ। क्योंकि जो बाकी की गाड़ियाँ होती है ना, वो भी आपको चेस कर रही होती है एक तरीके से। हाईवे में आप कभी भी देखना, अगर आप थोड़े स्पीड में चल रहे हो ना, तो आपको गाड़ियाँ ना चेस करने लग जाती है, समझ गए। और उनको जैसे भी जगह मिलेगी, आप समझ लो कि आपके सामने आगे एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक वाला ब्रेक मार रहा है, आप सोचोगे कि लेफ्ट में घुस के निकल जाऊँ, तो आप नहीं, गलती हो जाएगी, समझ गए ना। क्योंकि जो आपको चेस करते हुआ रहा है ना, वो आपको एकदम दबा के छिटका के निकाल लेगा गाड़ी, और उसमें आपको गिरने का, एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस होता है, समझे। अगर आप थोड़े से स्लो हो तो भी रिस्क रहता है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना 100 के ऊपर रहता है, समझे ना। 80 तक नॉर्मल है, चलते हैं आदमी, आते जाते, उसमें राइडिंग गियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये था, ठीक है, कि मतलब मैं इसके लिए मैंने, मतलब मेरा बहाना ये है कि इसके लिए मैंने राइडिंग गियर नहीं पहना, ठीक है। और मेरा ये था कि भाई ग्लव्स लूँगा तो कौन से लूँगा, क्या पहनूंगा नहीं पहनूंगा। तो मैंने ये कहा था कि भाई मैं राइड करूँगा, और जिस चीज़ की मेरे को ज़रूरत होगी ना, मैं वो चीज़ खरीदूँगा। अब जैसे मेरे को ग्लव्स की ज़रूरत पड़ी, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, हल्का सा लाल हो गया ये। जब हम एक्सीलेटर पकड़ते हैं ना, तो ये वाला पार्ट है ना, जो अपना अंगूठे वाला, वो ऐसे टच रहता है। और जब एक्सीलेटर देते हैं ना, थोड़ा और ज़्यादा देना होता है ना, तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा घिसने लगता है, जिसके कारण हल्का सा जलन वाला दर्द होता है। तो ये एक चीज़ हो गई, और बाकी मेरे को कहीं कुछ नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर कट वाला अंडरवेयर पहनते हो ना, तो तकलीफ़ होने लगती है। वो फिर है ना, वो चिमटी जैसा काटने लग जाती है, समझे। तो ये एक चीज़ है। अब आज सवेरे जो मैं निकलूँगा तो फुल अंडरवेयर पहन के निकलूँगा, मतलब वो जो यहाँ तक आता है ना, यहाँ तक वाला, वो वाला पहन के निकलूँगा, समझे। तो मेरे को पता चलेगा कि क्या है कैसा है। अभी तक मैंने 2 बार फ्यूल भरवाया, रिफ्यूल किया है। 1400 रुपये तक का फ्यूल गया है अभी तक यहाँ तक आने में मेरे को, और समझो ना कि 500 के पार ही चला गया हो, मतलब। और अभी जो मैंने 1400 का फ्यूल गया नहीं, 700 का ही गया है। 700 का अभी मैंने फिलअप करवाया है, तो अभी तो वो टाँकी फुल ही है ना। और अहमदाबाद के अंदर में घुस गया था, जिसके कारण थोड़ा सा मेरे को लेट हो गया, नहीं तो मैं और पहले निकल जाता। लेकिन मैं वो रोड लेना नहीं चाहता था, उदयपुर वाला, क्योंकि यार वो बहुत ही भंगार रोड है अभी फ़िलहाल। इसीलिए मैं पाली वाला रोड पकड़ा। जो पाली वाला जो रोड है ना, वो एकदम मस्त मस्का है, इसके लिए वो रोड से आ रहा हूँ, ठीक है। तो फिर चलो, आज के लिए इतना ही था। अब मैं आप लोग को मिलूंगा कल। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, सपोर्ट करो यार। आप लोग को थोड़ा बहुत प्यार कमेंट मिलता है ना, गलती से 1-2 कमेंट आ जाते हैं तो अच्छा लगता है भाइयों, है ना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।